जो लोग कैमरा खोल सकते हैं मेहरबानी से खोलने, मुझे अच्छा लगेगा। अम, जब तूफान आया था, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास पानी पर चलकर आया, When the storm came, when the Lord came walking to his disciples on the water, तो इतना शोर, आप कभी समुद्र में गए हो, जब काफी उभार पर हो, तो पास खड़े हुए आदमी की आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। it becomes difficult to hear a voice of a man who's standing right next to you. तो वो चेलों ने प्रभु की आवाज को कैसे सुन लिया थे? How did the disciples hear the voice of the Lord? हाँ, परमेश्वर प्रभु ने अपनी भेड़ों को एक वरदान दिया है कि चाहे परेशान, The Lord has given his people this gift. हाँ, कि वो कितनी परेशानियों में हो, कितनी परेशानियों का शोर उनके कानों में हो, फिर भी वो अपने प्रभु की आवाज को सुन लेते हैं, पहचान लेते हैं। However much there will be troubles, problems, storms around them, they'll still be able to hear the voice of their Lord. मरकुस में कहता है, प्रभु उनकी समझ के अनुसार वचन देता है। It says in Mark that the Lord gives them word according to their understanding. एक प्रचारक ने पूछा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? One preacher asked, can you understand what I am saying? एक 14-15 साल की लड़की बोली, नहीं, समझ में नहीं आ रही। A 14-15-year-old girl said, no, I'm not able to understand. हाँ, मगर हमारा प्रभु जब वचन देता था तो हर एक को उसकी समझ के अनुसार वचन देता था। But when our Lord used to give the word of God, he used to give them according to each one's understanding. हाँ, वो अपनी समझ के अनुसार नहीं देता, not according to his understanding. हाँ, मुझ जैसे आदमी की समझ के अनुसार देता था, ताकि मैं समझ सकूं। He would give word according to a man of my understanding, so I may understand. हाँ, हकला मूसा जब बोलता था, As when the stammerer Moses used to speak, हाँ, और बड़े आराम से लोगों को समझ आता था परमेश्वर, easily people could understand, और परमेश्वर की सामर्थ और महिमा प्रकट होती थी। and the power and glory of God was revealed. तो परमेश्वर ने अपने लोगों को ये सामर्थ दी है कि वो परमेश्वर की आवाज को पहचान सकें और परमेश्वर की बात को समझ सकें। The Lord has given this power to his people. They may recognize the voice of the Lord and understand the voice of the Lord. कल मीटिंग के बाद अश्वनी का फोन आया मेरे पास, एकदम मीटिंग के साथ। After the meeting, immediately Brother Ashwini rang me up. क्योंकि भाई हम ये डुप्लीकेट विश्वासियों को कैसे पहचान सकते हैं? Brother, how can we recognize these duplicate believers? हाँ, तो डुप्लीकेट तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लगता है, मसली माल दिखता। A duplicate looks totally original, like the real thing. कभी कभी तो ज्यादा ही चमकदार होता है उससे। Sometimes it's even more shining, looks even better. तो डुप्लीकेट विश्वासी का कैसे पता लगे? How do you recognize a duplicate believer? तो बड़ी साधारण सी बात है, कुछ समय बाद डुप्लीकेट अपने आप ही परेशान पैदा करने लगेगा, समस्या खड़ी करने लगेगा। After some time, we know a duplicate product will start creating troubles and problems. हाँ, तो ऐसे डुप्लीकेट जो विश्वासी कुछ दिनों के बाद समस्याएं खड़ी करने लगते हैं। And such duplicate believers, after some time, start creating problems. हाँ, ये एक शारीरिक मसीह की खोज में, संसारिक मसीह की खोज में, they are in search of an earthly Christ. हाँ, इसके बारे में अभी देखेंगे। As we see a little bit about this. हाँ, मंडली उनके मन के अनुसार होनी चाहिए। Assembly should be according to their heart's desire. वचन के अनुसार हो या ना हो, मगर उनके मन के अनुसार। Should be, whether it is according to the word of God or not, it should be according to their desire. हाँ, वो खुद तो प्रचार नहीं कर सकते, मगर प्रचारकों की आलोचना खूब कर सकते हैं। They cannot preach, but they can criticize preachers very much. हाँ, वो किसी को उभार तो नहीं सकते, निराश काफी कर सकते। They cannot encourage anyone, but they can discourage many people. हाँ, तो ये शुरू से मूसा के टाइम से लेकर ईसा तक और प्रभु के दूसरे आने तक ये लोग रहेंगे साथ। And such people will always remain. They've always been there right from the time of Christ even till today. इनसे कुछ Even from the time of Moses.
हाँ, इनको कुछ करने के लिए कई बहानों की लाइन लगी होती है इनके पास। If you ask them to do something, they have a long line of excuses. और ऐसे शारीरिक लोगों का एक अलग ग्रुप मंडी में ही बनकर खड़ा हो जाता है। And a group of such carnal believers stands up separately in an assembly. हाँ, और प्रभु एक बात कहता है भजन 119 और 26 में कि जब लोग ऐसी व्यवस्था तोड़ते हैं तो प्रभु बड़ा काम करता है उस समय। And Psalm 119:26 it says, when the people do such kind of व्यवस्था को तोड़ते हैं। there's a great work at the time. तो आइए आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय 57 से 62 तक, 57 to 62। यस भाई। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे पूछा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। और उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वे परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray? प्रभु जी इस वचन पे आप आशीष दें God bless this word. और प्रभु अपने लोगों से बातचीत करें। प्रभु आपकी भेड़े आपकी आवाज को सुन सकें। Lord, speak to your people. Your sheep may be able to hear your voice. हाँ प्रभु, जो बात करना चाहते हैं उसे समझ सकें। Lord, we want to speak. They may be able to understand. यिर्मयाह 1:9, 48:6, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. बोलते हियाब दें, पुकारने का शब्द दें। You bold us to speak and a voice to cry out. पवित्र आत्मा अपना पूरा कंट्रोल लें। Holy Spirit, take full control. और प्रभु कहीं कोई छुपा पाप या घमंड हो तो अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम से क्षमा करें। If there is any hidden sin or pride, wash it away in the blood of the Lord Jesus. और प्रभु आप अपने लोगों को निराश होकर ना जाने। Lord, your people may not go back discouraged. प्रभु आप दया करें। Lord, have mercy. ये इंटरनेट की जो प्रॉब्लम आ रही है प्रभु इसे सॉल्व करें। Lord, solve this internet problem that's coming. प्रभु दया करें। Lord, have mercy. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. आपकी आवाज बड़ी लेट आ रही है भाई, ये बात है, परेशानी होने लगी। भाई मेरा ये दूसरा कनेक्शन लगा रखा है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। आईटी का कनेक्शन खराब है आज। अच्छा, तो प्रभु दया रखे। ये टाइम था जब प्रभु अपने बिल्कुल उसकी जो प्रसिद्धि थी वो पीक पर थी, ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर। This was the time when the Lord's fame was at its peak. हाँ, और उसकी सेवकाई समाप्ति की ओर जा रही थी। His ministry was going to the end. भाई ये आवाज आपकी बहुत। भाई let me एक मिनट में I'll join through my phone भाई। हेलो भाई। हेलो भाई। हाँ आवाज आ रही है भाई। या तो मतलब और वो एक प्रभु की हर एक की सेवकाई का एक समय सीमित है। भाई एक मिनट भाई, जस्ट वन सेक भाई, जस्ट वन सेक। Please continue.
हाँ, Yeah. प्रभु को भी एक सीमित समय था सेवकाई का इस पृथ्वी पर, The Lord had a limited time for his ministry, और उसकी प्रसिद्धि पूरी प्रकाष्ठा पे थी। and his fame had reached its very pinnacle. हाँ, और आपने देखा है यरूशलेम तो राजनीति का गढ़ था। And Jerusalem was a place of great politics. हाँ, और जब एक पार्टी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि भाई अब की बार बहुमत ले जाएगा, तो लोगों की भीड़ उसकी तरफ दौड़ने लगती है, दूसरी पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के उसके पास आने लगते हैं। Immediately, when one party is apparent that he will take the majority, people start veering towards that party, leaving the other parties. और वो जीत की तरफ भागते हैं, यार ये तो They run अपनी पार्टी towards छोड़ दी। victory. हाँ, वो उनका दर्शन नहीं बदला होता, मतलब बदल गया अब, क्योंकि इसलिए Their vision has not changed, but their selfish motive pulls them. तो फरीसियों की पार्टी छोड़ छोड़ के यीशु के सच्चे लोगों के साथ जुड़ रहे थे। So, leaving the Pharisee party, they were joining the Jesus party. हाँ, और यरूशलेम तो फरीसियों के राजनीतिक गढ़ था। Now, Jerusalem was the political stronghold of the Pharisees. और उस गढ़ में, विरोधियों के गढ़ में, यीशु को राजा बनाने के लिए तैयार हो गए थे भाई। And in that stronghold, they were willing to make Jesus king. हाँ, वो एक शारीरिक यीशु को खोज रहे थे जो उन्हें रोमी गुलामी से आजादी दिलाए। They were searching for a carnal, a physical Jesus who would deliver them from the slavery of the Romans. हाँ, मगर आखिर में देखते हैं जब उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हुई, तो वही पार्टी बदल के फिर खड़े हो गए, इसे क्रूस पे चढ़ा दे। And when in the end their own motives could not be fulfilled, the church left the party, stood against him to crucify him. हाँ, तो आप जान सकते हैं कि ये दोगले किस्म के मसीह लोग थे। Now these are duplicate believers. ये मैंने कहा ना, मूसा से लेकर और मसीह तक, और मसीह से लेकर दूसरे आगमन तक मसीह के मिलते रहेंगे ये लोग। From Moses to the first coming of Christ, and from the first coming to the second coming of Christ, you keep on meeting such people. ये डिवाइडेड हार्ट के हैं, बटे हुए दिल हैं इनके। They are people of a divided heart. हाँ, संसार भी, शरीर भी, मसीह भी, सब जहाँ जैसा। भाई आपकी आवाज कट रही है, मुझे भी बड़ा वो हो रहा है भाई। So sorry, क्या करें भाई? I don't have. विद्या को दे दो, आप विद्या को दे दो। Vidya, can you take over? मेरी आवाज आ रही है भाई? हाँ, तो ये डिवाइडेड हार्ट के थे, मतलब These people were of divided heart. हाँ, लूका 57 में 9 से 57 से 62 में हम 3 व्यक्तियों से मिलते हैं, प्रभु हमारी मुलाकात कराता है। And in Luke 9, 57 to 62, 57-62, we see 3 kinds of people. प्रभु हमारी मुलाकात 3 आदमियों से कराता है। And the Lord introduces us to 3 people. हाँ, 2 लोग खुद आए और एक को प्रभु ने खुद बुलाया। And 2 of them came by themselves, and the third person, the Lord called him. हाँ, ये पहला आदमी परमेश्वर को, पैसे को परमेश्वर से पहले रखता था। And this first person has much more concern for money than the Lord. यार नहीं, कंसर्न नहीं यार, आगे रखता था। He valued money than the Lord. हाँ, पहले रखता था, फर्स्ट। He valued money first than the Lord. यार वैल्यूड नहीं, यार वैल्यूड नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो प्रभु से पहले रखता था भाई। he kept रखता था। His first priority was money than the Lord. हाँ, और दूसरा जो था वो आदमी परिवार को पहले रखता था अपने परमेश्वर से। And for the second person, his first priority was his family rather than the Lord. और तीसरा आदमी अपनी इच्छाओं को पहले रखता था, फिर परमेश्वर को रखता था। And the third person kept his will as first priority rather than the Lord. हाँ, पहला पैसे को परमेश्वर से पहले रखता था, दूसरा
परिवार को पहले रखता था और तीसरा अपनी इच्छाओं को परमेश्वर से पहले रखता था। The first person had priority of money rather than the Lord. The second person had priority towards his family than the Lord, and the third person had his desires priority than the Lord. ये कह रहा है, वो कह रहा है नॉट फिट फॉर, परमेश्वर के राज के लिए फिट नहीं है। And the Lord says these kind of people are not fit for his kingdom. हाँ, मगर वो फिट शब्द सही नहीं है, अंग्रेजी का जो शब्द है। And the word fit in English is not the right word. हम में से एक भी आदमी परमेश्वर के राज्य के लिए फिट नहीं है। None of us are fit for the kingdom of God. हाँ, हम में से एक भी नहीं है। Not even one. हाँ, वो फिट की जगह है, नॉट राइट प्लेस, सही जगह पर नहीं खड़े हैं वो। And in the place of fit, it should be not standing at the right place. हाँ, ग्रीक यही बात बताता है। It is the Greek meaning of the word is this, नॉट इन द राइट प्लेस। not in the right place. हाँ, ये मत समझिए कि मुझे ग्रीक आती है, मुझे ग्रीक का ABCD भी नहीं आता भाई जी। Don't even think that I know Greek. I do not know the alphabets of Greek. हाँ, ये तो इधर उधर से भाई जी खींच खाच के कहीं सीखता हूँ। I learn it from here and there. हाँ, 57 जरा पढ़ दें एक बार भाई जरूर। हाँ, 57 पद। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हाँ, Now it ये happened. आदमी, हाँ, ये आदमी कहाँ खुद आया, ये आदमी था कौन वास्तव में, इसके बारे में जरा खोजबीन करते। And this person came to the Lord. Let us see who this man is. पढ़िएगा, ये कौन था वास्तव में, मत्ती 18, 19 और 20 हमें बताता है। And Matthew 18, 19 and 20 tells 8 यार, 8, 19 and 20, 8। Matthew 8, 19 and 20 gives the details of this person. 19 और 20। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। हाँ, ये तो फरीसियों के पार्टी का था और बड़ा शास्त्री था। जब इसने देखा, ये प्रभु बस अब इतना प्रभावित हुआ प्रभु यीशु से, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा मैं चलूंगा तेरे साथ, देखी जाएगी। And this person was so influenced by the Lord that he's saying, Lord, wherever you go, I will follow. He belonged to the party of the Pharisees. Now he was behind. वो प्रभावित हुआ था, परिवर्तित नहीं हुआ था। He was influenced, but he was not changed. हाँ, ये उसका एक भावनात्मक, जैसे वचन सुना, बड़ा जोश हुआ, फैसला लिया और कलावा निकल गई। And this was a very emotional decision, like he heard the word and he got emotional and took a decision. हाँ, अब प्रभु उसके सीने में झांक कर देखता है और कहता है, भाई तेरी वास्तविक हालत ये है, मैं बताता हूँ। And the Lord looked straight into his heart and says, this is your true nature. वो हमारे शब्दों से बहकाया नहीं जा सकता, जैसे हम एक दूसरे को बहका लेते हैं। And he cannot be deceived by our words like we deceive each other. हाँ, प्रभु ने उसके सीने में झांक के कहा, तेरी देख मैं बताता हूँ असली And the Lord looked straight into his heart and said, see, I'll reply. हाँ, वो कह रहा है, फिर पढ़ दीजिए एक बार 57 वर्ष, लूका 9:7। जी भाई। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हाँ, तो प्रभु ने इसके अंदर झांक कर कहा और देखा कि यार तू जो बात कह रहा है वो सिर्फ भावनात्मक है, वो आत्मिक नहीं है। And the Lord looked into his heart and said, what you're saying is emotional but not spiritual. हाँ, तो एक आराम में जिंदगी चाहता है, बहुत आराम की कंफर्ट लाइफ चाहता है। All you want is a comfortable life. हाँ, और तुझे मेरे साथ फूलों से सजा हुआ मार्ग नहीं मिलने का। You would not get a decorated road decorated with roses with me, flowers. हाँ, ये दोगला था, मसीह को भी चाहता था और मौज भी चाहता था। And this person was double-minded. He wanted
Christ and he wanted the world also. हाँ, हम में से कई होंगे जो चाहते हैं कोई दुख ना उठाना पड़े, भाई जी आराम से सोते रहे, कुछ भी करते रहे, कुछ भी जीते रहे, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, हमारी कहीं मौज मस्ती में कोई कमी ना आए, और मसीह भी साथ रहे, दोनों तरफ। Even there are people amongst us who wants a comfortable life. They want the Christ and they want their entertainment and they want everything from the Lord. हाँ, इनको तू दोगला है बेटा, दोगला है। You are a hypocrite. हाँ, तू सोच रहा है मुझे आराम भी मिल जाएगा और स्वर्ग भी मिल जाएगा। And you are दोनों हाथ thinking you will have all the comforts and you will have heaven also. ऐसे नहीं चल सकता तू मेरे साथ। You cannot walk like this with me. हाँ, तो कह रहा कि लोमड़ियों के पास कुछ है, तेरे पास वो भी नहीं बचेगा। And he says, foxes have holes, but you will not be left with anything. तो प्रभु से डिस्करेज नहीं कर रहा है, The Lord is not discouraging him, मगर मसीह के मार्ग की सच्चाई बता रहा है। but he is telling the truth of the way of the Lord. तू कीमत चुकाने को तैयार नहीं है, तेरा मन। You are not ready. Your heart is not ready to pay the price. हाँ, आने वाले दिनों में और 57 आएगा, देखेंगे कितने कीमत चुकाते हैं और कितने भाग खड़े होते हैं। And in the coming days, many persecutions will come. Let me see who will pay the price and who will run away. हाँ, प्रभु बता रहा है कि तू मसीह के साथ नहीं चल पाएगा। The Lord is saying you cannot walk with the Lord. तू परमेश्वर से पहले स्वार्थ को चाहता। They put their selfish motives before the Lord. तू अपने चैन और सुख का आराधक है, मतलब का आराधक है। You are a worshipper of your own. चानी भाई आ गए, हो गया ठीक भाई आपका? Why it's still a week? आप अपना वो बंद कर दो कैमरा, अब तो शायद आए। मैंने कैमरा बंद कर रखा है भाई। I'm trying to join. It is good now. You can try. Okay. Yeah, चलो. Okay. तू अपने स्वार्थ का आराधक है, You are a worshipper of your selfishness. मतलब का आराधक। You are a worshipper of your selfishness. हाँ, मसीह लूका 14, 27 और 28 में पढ़ते हैं। Luke 14, 27, 28. पढ़ दीजिएगा। जी भाई, लूका 14, 27 और 28। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो, पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। हाँ, कीमत चुकाने की औकात है तेरे पास? नहीं है। प्रभु You have the ability to pay the price. प्रभु ये नहीं कह रहा मेरी क्रूस उठानी है, ना, वो तो उठा ही नहीं सकते। The Lord is not saying my cross. You can't carry it. ना, प्रभु अपनी क्रूस उठाने के लिए बात नहीं कर रहा है। The Lord is not talking about him to carry the वो Lord's तो कह cross. रहा है वो आपकी क्रूस, आपके लिए कोई क्रूस रखी है, उसे उठाना पड़ेगा। But the Lord has kept a cross for you, your cross. हाँ, अगर वो अगर नहीं उठा सकता तो नहीं चल सकता मसीह। If you can't carry your cross, you can't walk with Christ. हाँ प्रियो, तो प्रभु जानता है, उससे पहले तू अपना हिसाब जोड़ ले और तब आ। The Lord says first you take your own account and then come. हाँ, कीमत चुकाने का है दिल तो आजा मेरे साथ। You have the heart to pay the price, then follow me. हाँ, विश्वासियों पर आ रहा है, उन्हें काफी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले दिनों में। In the days to come, the believers will have to pay a heavy price. हाँ, जो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ भी चाहते हैं और मसीह भी चाहते हैं, मौज भी और मसीह भी दोनों चाहते हैं, वो साथ नहीं चलने का। Those who want a very comfortable life in Christ will not be able to walk with him. हाँ, उसने कहा तेरे लिए क्रूस रखा है, अगर तू कीमत चुकाना चाहता है, हिम्मत है तो आजा। He says the cross is kept. If you want to pay, if you can't pay the price, follow me. हाँ, दूसरे आदमी के पास आते हैं। Comes to the second man. हाँ, ये दूसरे आदमी को प्रभु बुलाता है। The second man the Lord calls. हाँ, पहला आता है, दूसरे को बुलाता है। The first one came, the second one the Lord called. हाँ,
और क्या कहता है, देखिए ये आदमी बड़ा टैलेंटेड है, ये सुसमाचार का वो प्रचार कर सकता है, इसके पास वरदान है, गिफ्टेड आदमी। The second man is a gifted man. He can preach the gospel. हाँ, क्योंकि प्रभु कहता तू जा और सुसमाचार सुना, इसका मतलब उसे प्रभु ने वरदान दिया है, तभी Because the तो। Lord says, go and preach the gospel. मगर ये क्या That कहता means the है? Lord has given him the gift. हाँ, पढ़िए लूका 9, But 59 what does और he say? जी भाई, 59 और 60। उन्होंने Luke उसने 9, दूसरे से कहा, हाँ, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। Then he said to another, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. But Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. हाँ, प्रभु ने इसे वरदान दिया था सुसमाचार सुनाने का, इसके पास बुलाहट The थी। Lord had given him the gift to preach the gospel. He had a calling. हाँ, कई लोगों के पास बड़ी बुलाहट होती है, मगर क्या होता है उसके साथ, और वरदान भी दिया होता है। Some people have a calling and a gift, but what happens? प्रभु जी पहले, अरे प्रभु से पहले, Lord first. What is first before the Lord? हाँ, यानी यीशु पीछे और पहले मेरा परिवार है। That means Jesus is second, first is my family, हाँ, मेरी जिम्मेवारी है भाई जी वो। my responsibilities. हाँ प्रियो, अगर आपका परिवार और मसीह दोनों में से एक को चुनना हो तो आप किसे चुनोगे? If you have to choose between Christ and your family, who will you choose? Your family. नहीं हो सकता आपको शायद ऐसा दिन आ जाए। Maybe that day might come हाँ, जब आपको दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। when you have to choose one amongst two. हाँ, तब पहले किसे रखोगे आप? Then whom will you keep us? हाँ, बहुत चीजें हम प्रभु से पहले रखते हैं, और प्रभु ने इसे बुलाया था, बुलाहट थी, मगर इसने परमेश्वर की बुलाहट को ठुकरा दिया। परमेश्वर के Many पास आकर things लौट we जाना keep before. बुरी बात है। परमेश्वर के पास आकर लौट जाना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, मगर परमेश्वर की बुलाहट को ठुकराना, वरदान देने के बाद ठुकराना, ये भयानक बात है। To come to the Lord and walk away is a bad thing. But to have a calling and then not to do that is worse. हाँ, कुछ लोग प्रभु से पहले बहुत चीजें रखते हैं। Many people keep several things before Christ. नहीं, सुबह उठते ही एकदम सबसे पहले प्रभु रखना है, पहले हमें प्रार्थना First, करनी है, waking up in the morning, the Lord is first. हाँ, फिर वचन पढ़ना है हमें। First, we have to pray. We have to read the Word of God. हाँ, और फिर देखिए वो पूरा दिन नया कर देगा आपका। And it will make the whole day new for you. हाँ, मगर नींद को हम पहले रखते हैं, उसे क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा। That we have to keep the sleep first. It has to be crucified. अरे शैतान तो क्या, अगर रजाई चिपट जाए उसे छूटना भारी होता है। What about Satan? Even if the quilt attaches yours to you, you can't leave it. तो शैतान तो बड़ी चीज है। Satan is a very big thing. हाँ, बहुत सुबह उठकर नींद को एक तरफ रखकर, Waking up very early in the morning, keeping the sleep aside. और फिर प्रभु के वचन को मनन करो, सारा दिन नया कर दे। And then meditate on the Word of God. The whole day becomes new. तो ये क्रूस उठानी है, नींद को छोड़ना है, क्रूस उठानी We have to carry this cross. We have to leave the sleep. हाँ, तो प्रभु को पहले रखना है। And keeping the Lord first. हाँ, अब कुछ लोग पहले परिवार को रखते हैं। Some people keep family first. वो परिवार की आराधना करते हैं बस। They worship their family. हाँ, प्रियो, मैंने जैसे कहा, वो परिवार उनके लिए पहला है, परमेश्वर दूसरे स्थान पर है। Their family is first, the Lord is second.
मैं एक बात करता हूँ, आप अपने परिवार को प्यार करते हैं इसलिए आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। हाँ या You नहीं love तो your family, you'll do everything for your family. करते नहीं Yes करते? or no? हाँ, अगर परमेश्वर को अगर Don't आप you? प्यार करते हैं उसके लिए सब कुछ करते हैं। ये सबूत है If you love आपके the Lord, you'll दोगलेपन do का everything for या the Lord. इखलाते That is the proof of your double-mindedness or single-mindedness. हाँ, ये डुप्लीकेट और ओरिजिनल अगर ये कीमत नहीं चुका सकते, नॉट फिट फॉर, वो कहना चाहिए आप सही स्थान पर नहीं खड़े हैं। If you cannot pay this price, you're not standing in the right place. हाँ, हाँ, परिवार का ध्यान रखना जरूरी चीज है। It is very important to look after the family. हाँ, मगर प्रियो, परिवार परमेश्वर से पहले रखना परिवार को पाप है। But to keep family before Christ is a sin. हाँ, ये कीमत चुकानी पड़ती है। We have to pay the price. आराम के रूप में कीमत चुकानी पड़ती है। We have to pay the price for rest. हाँ, आप नौकरी के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, प्रभु के प्यार करेंगे उसके लिए बहुत परिश्रम करेंगे, आप रोज प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं आपको पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से प्यार कर सकूं, मुझे सामर्थ। You love your job, you work so hard in your job, but if you love Christ, you say to the Lord every day, Lord, I'll give my heart, soul and mind, Lord, I'll serve you with all my heart, soul and mind. हाँ, इसके पास बुलाहट थी, टैलेंट था, मगर ये भावनात्मक तौर पे अपने परिवार से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। He had a talent और कॉलिंग ऑल्सो। and a calling. हाँ, तो ये हमेशा अपने परिवार को आगे रखता है But he always keeps his family first और प्रभु को दूसरे स्थान पर रखता है। and the Lord second. हाँ, देखिए ये कहता है प्रभु मैं जरा अपने बाप को दाबिया हूं फिर चलूं आऊंगा। Lord, let me first go bury my father, then I'll come with you. क्योंकि प्रभु अगर मैं इस समय आ गया Lord, if I come at this time, तो भाई सब समेट लेंगे जायदाद, अभी बुढ़ा मरा नहीं है। my brothers will take all the inheritance. My father is the old man, is not yet dead. हाँ भाई जी, इस समय वहां घर रहना जरूरी है भाई जी। It is very important to be at home at this time. बेवकूफ, तेरे बाप के टिकट कटने से पहले तेरा ना कट जाए टिकट। Oh, you fool! Before your father goes, you might go. अगर आप कुछ भी प्रभु से पहले रखते हैं, If you keep anything before Christ, हाँ पहले मैं ये काम कर लूं फिर ये हो, first I'll do this, then Christ. हाँ पहले नौकरी लग जाए फिर करूंगा प्रभु की सेवा, First I had a job, then I'll serve the Lord. फिर शादी हो जाए फिर करूंगा, First I get married, then I'll serve the Lord. बच्चे सेटल हो जाए फिर करूंगा प्रभु की सेवा। First the children get settled, then I'll serve the Lord. कब्र में भी उतर जाएगा तब भी नहीं कर सकते। Even if you get into the grave, you will not be able to serve the Lord. प्रभु ने तुझे एक तोड़ा दिया, उसका हिसाब लिया जाएगा, तेरे The पास Lord has given you a calling and a talent. हाँ, देखिए योनाथन जानता था Jonathan knew कि मेरा बाप गलत है that my father is wrong और डेविड सही संत है, and David is the right man of God. मगर भावनात्मक तौर पर अपने बाप के साथ जा खड़ा हुआ, संत के साथ नहीं हुआ, और उसका भी अंत वो हुआ जो साउल का हुआ। But emotionally, he stood with his father, with his family, rather than the man of God. That was also his end. हाँ, अब वो अपने बाप के, क्योंकि मेरा बाप है, मालूम था कि सही है ये संत, यही है संत, मगर उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। He knew David is a man of God, but did not stand with David. प्रियो, सत्य को जानकर ना मानना भयानक बात है, इससे बेहतर था आप सत्य जानते ही नहीं। To know the truth and not to obey it is a terrible, terrible thing. It was better if you not known the truth. इसके पास प्रभु का सुसमाचार देने का वरदान था, इसने मट्टी में गाड़ा। He had the gift to preach the gospel of Christ. He buried it in the earth. हाँ, तो ऐसे मतलबी विश्वासी जो है वो कभी भी सुसमाचार को प्यार नहीं करते। Such selfish believers never loved the gospel.
हाँ, वो कभी देने उन्हें ये नहीं कि मैंने आज दिया या नहीं दिया सुसमाचार। They never have, but I've given the gospel today or not. वो तो डरपोक है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, They are fearful. If something happens, what should I do? What will I do? आज नहीं तो कल तो कुछ ना कुछ होगा। Today, if not today, tomorrow something will happen. जो विश्वासी सुसमाचार को प्यार नहीं करता वो परमेश्वर को प्यार नहीं करता। The believer who does not love the gospel does not love the Lord. हाँ, वो प्यार ही नहीं करता, वो तो सिर्फ बात करता है। He doesn't love the Lord. He only talks. प्रियो, आपकी मंडली के साथ मेंबरशिप है, डिसाइपलशिप नहीं है। Dear ones, you have membership with the assembly, not discipleship. हाँ, भीड़ के साथ चलना चाहते हैं। You want to walk with the crowd. देमासस स्वार्थ के साथ जीता था, लगता था असली मगर था डुप्लीकेट, संसार से जुड़ा हुआ था। Demas was a duplicate believer. He was joined with the world. Looked real. मगर वो संसार उसके जीवन में पहले था। But the world was first in his life. कुछ दिनों में डुप्लीकेट प्रकट हो गया, संसार के साथ चला गया। And after a while, the duplicity was revealed. He went with the world. हाँ, देखिए यूसुफ को देखिए, यूसुफ। See Joseph. हाँ, यूसुफ जानता था, लोग ये जानते थे कि यूसुफ यीशु का बाप है। The people knew Joseph is the father of Jesus Christ. ये यूसुफ जानता था ये मेरा बेटा नहीं है और मैं इसका बाप नहीं, जानता था। But Joseph knew that this Jesus, he is not my son and I'm not his father. हाँ या नहीं? True or not? जानता था, फिर जान पर खेलकर उसको लिए फिरता था, कहीं उसको जान कोई ना ले ले उसकी। But knowing that, he looked after him with great risk to his life. Something may not happen to him. गरीब बेचारा, बिल्कुल खाने को नहीं, मारा फिर कभी मिस्र चला जाता, मास्टर है, किसी तरह इस बच्चे पर आँच ना आ जाए। Very poor, difficult to even have employment, running from one place to another into Egypt. जानता था ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। He knows he's not my son. हाँ, मगर अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। But he used to love him more than his own life. वो अपनी जान पर खेल गया उसके, and he risked his life for him. क्या स्वार्थ था उसे, प्यार था। What selfishness? No, only love. परमेश्वर से प्यार था। The love of God. आपके काम बताते हैं आप कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं। Your works show how much you love the Lord. हाँ, दूसरी बात, Another thing. देखिए एक और बात है, हमारे अंदर कुछ एक घमंड का स्वभाव है, हमारी सोच में एक घमंड है, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। जी, भाई आपका माइक ऑफ। हेलो। हाँ जी भाई। हाँ, मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा आपसे। I'll talk about this pride that is in us. ये हमारी सोच में है, हमारी सोच के सिंहासन पर, जो मन के सिंहासन है, उससे एक सोता बहता है, घमंड का, पाप का, स्वार्थ का, लगातार बहता रहता है। From the throne of our heart there flows a spring of selfishness and pride and ego and jealousy. घमंड का, शक का, ये हमारे सिंहासन है ना, मन, पुराने मन का सिंहासन के नीचे से बहता है। Of pride and doubt, it flows from the throne of our heart. हाँ, देखिए मैंने जैसे आपसे कहा, प्रभु के पास आना, प्रभु के पास से लौट जाना गलत बात है, मगर बुलाहट को ठुकराना भयानक बात है। I just said turning away, walking away from Christ is a terrible thing, but to reject God's calling is a worse thing. हाँ, देखिए कई आदमी की सोच है, वो पहले अपने आप को, मेरा जो दिखावा है, जो मेरी पर्सनैलिटी है, दूसरों पर मेरा गलत प्रभाव ना पड़ जाए। Some people have this thing that my personality, other people may not have a wrong impression about me. तो वास्तविक विश्वासी है, मैंने कहा ना, एक बहन खड़े होकर कह रही, सैकड़ों लोगों के बीच में, आईआईटी की बड़ी पढ़ी, मतलब पीएचडी करती है, मैं वो हूँ जो पोर्नोग्राफी देखती थी प्रभु के ऊपर।
A sister, a piety scholar, she said openly, I used to watch pornography. लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं थी उसे। Not worried what people will say. एक बहन कह रही मैं दंग रह गया, प्रभु ने मुझे व्यभिचार से छुड़ाया है। One sister saying openly, the Lord delivered me from adultery. हाँ, वो अपनी असलियत छुपाते हैं, दिखाना नहीं चाहते कि मैं असल में हूँ। They hide their real identity. They don't want to show it. वो दिखावे पर। एक लेडी थी बड़ी ठीक ठाक रहना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक ठाक To रहना। live well is good. हाँ, एक लेडी को बड़ा शौक था भाई फैट ना चढ़ जाए, कपड़े ये हो और पहनना ये हो, बड़ी हर टाइम फिट फाट रहना ये। One पैसे वाले। lady, she had a great desire not to put on weight and look really nice all the और time. भी बाहर भी निकलती थी तो बड़ा ठीक ठाक, बहुत ज्यादा। Even if she goes out, she'll put on lipstick, etc. हाँ, मतलब वो उसका जो दिखाना है वो कहीं कम ना हो जाए। That her outward appearance may not go down. पैसे वाली थी, हार्ट अटैक पड़ गया एक दिन उससे। She was rich once she had a heart attack. एम्बुलेंस बुलाई, उसने पता लग गया कि मुझे हो रहा है कुछ गड़बड़। And she knew something's going to happen, so she called the ambulance. अब वो बाहर खड़ी हो गई एम्बुलेंस, उसने हॉर्न घंटी बजाई तो उठ के जाने वाली थी, तो शीशे में देखा यार मेरी शक्ल तो बड़ी अजीब दिखाई दे रही है, मैं हॉस्पिटल ऐसे जाऊंगी थोड़ा तो ठीक ठाक होके जाऊं। As she's about to go into the ambulance, she looks at her in the mirror and looks herself in the mirror and she says, at least let me make myself right before I go. हाँ, वो अपने आप को ड्रेस आधा Put on घंटे बाद, lipstick, etc. Half an hour later, हाँ वो एम्बुलेंस वाला खड़ा, उसने फिर दोबारा घंटी बजाई, जब कोई आवाज नहीं आई तो अंदर जाके उसने देखा भाई क्या बात है, क्यों नहीं आ रही। the ambulance man, half an hour waiting, rang the bell, went in, see what happened. हाँ, तो देखा ड्रेसिंग टेबल पे उल्टी पड़ी है, मरी हुई। And he saw her sitting on the dressing table dead. उसने उस समय की पहचान नहीं की। She did not value the time that she had. खो दिया उसने, She lost it. खो दिया उसने। She lost the opportunity. फिर कितने लोगों ने ऐसे मौके खो दिए जब वो बच सकते थे, बचा सकते थे, मगर उन्होंने उस समय की कीमत को नहीं जाना। So many people lost the opportunity when they could have been saved or they could save somebody. They didn't realize the value of the time. हाँ, देखिए जब आपके दिल पर वचन अटैक कर रहा है, When the word is attacking your heart, जब आप देर करेंगे तो परिणाम भी बहुत भयानक। if you will delay, the consequences also will be terrible. हाँ, वो कहता है वचन सीधा, जब तेरा वचन मेरे पास आया तो मैंने उसे मानने में देर नहीं की। Psalm, he says, when your word came to me, I did not delay in obeying it. हाँ, देखिए ये दूसरे आदमी की जिसे प्रभु ने बुलाया था। This is the second man whom the Lord had called. हाँ, आपको बुला दी होगी, शायद आपने ना सुनी हो। प्रभु ने उसे बुलाया, इसके सामने काम रखा, जा सुसमाचार सुना, ये तेरा काम है। The Lord had given him calling, go preach the gospel. This is your calling. हाँ, इसने बहुत सारे बहाने, डर, बहुत सारी चीजें बताई और गिनाई होंगी। He must have said many things and fears and doubts. So many things he must have told the Lord. ये स्वर्ग के राज्य में सही जगह नहीं खड़ा, दोगला था। He was not standing in the right place in the kingdom of टैलेंट था God. इसके पास, टैलेंट था। He had a talent. हाँ, तीसरा आदमी जो The third man ईमानदारी से आया प्रभु के पास, came to the Lord honestly, पैसा लेने नहीं आया था, not for money. प्रभु के पास आता है, Comes to the Lord. प्रभु ऐसा मैं जाके अपने घर वालों को बाय बाय तो करिए। Lord, at least let me say bye to my family. हाँ, मगर ये पुरानी सोच के साथ जुड़ा हुआ था। He was joined with an old thinking. जो बीत गया। What is passed away is passed away. हाँ, देखिए निहम भाई साहब, हम बात करें, मैं ऐसा था और मैंने इतना किया, मैंने ऐसे प्रचार किया, मैं पता नहीं कितने घमंड के साथ हम जुड़े रहते। Some people joined with so much pride. I preached like this and I've done this and I've done that. हाँ, प्रियो, ये घमंड जो है परमेश्वर के अनुग्रह का अपमान है। This pride is a dishonor to the grace of God. बड़ा गंदा अपमान है प्रभु का।
very terrible dishonor to the grace of God. अभी मैं परसों तरसों दूध लेने जा रहा था, Just a few days back, I was going to take milk. हाँ तो एक बुढ़ा बिल्कुल पहिए धुर रहे, उसके कोई काम नहीं कर रहा, One old man, his wheels are not working, हाँ उसकी खोपड़ी की खेती भी बिल्कुल इस तरह साफ थी, and his field was also completely without any crop. मगर एक बात थी, उसकी बीवी मेरी बीवी की तरह खूबसूरत थी, But his wife was as beautiful as mine. हाँ और चल ऐसे रहा था वो जैसे भाई शेर की भी चाल क्या होगी भाई साहब, And he was walking as if, you know, even the lion cannot walk like that. हाँ मैं सोच रहा यार कब्र में पैर लटक रहे हैं मगर दिमाग पर घमंड वही सवार है, And I'm thinking, his feet are hanging in the grave, but the same pride is riding on his mind. हाँ भाई साहब, और ये प्रियो, ये हमारे अंदर जो दिल है ना, This heart within us, इसके अंदर एक सोता है जिसमें से ये सब चीजें बहती रहती है, there is a fountain in it that flows on with all these things. हाँ ये हमारी सोच है। This is our thinking. पीटर और पतरस और यूहन्ना में बड़ा होड़ था कि हम में बड़ा कौन है, Peter and John had a tremendous struggle. Who is greatest among us? हाँ जब पवित्र आत्मा ने एक कर दिया, जब ये एक साथ प्रार्थना करने लगे प्रेरितों काम 4 और 4 में, तो मंडली में इन्हीं लोगों ने 5000 आदमी को जोड़ लिया। But these two, when they became one, Acts 4:4, they joined 5,000 people to the assembly. मगर इनकी सोच में बड़ा बनने की जब तक सोच थी, But as long as the desire was to become great in their minds, हाँ प्रियो हमारी सोच बड़ी गलत है, कहीं सोच में तुम our अपनी सोच के बारे thinking में is very सोचो, wrong. हाँ तुम बुरा क्यों सोचते हो, Why do you think evil? हाँ तुम बुरा क्यों सोचते हो, Why do you think evil? प्रभु आपकी सोच को देख लेता है, ये क्या सोचता है, ये The आदमी Lord- लालची है, ये शक्की है, ये बात सोचता है, आप क्या सोचते हुए सोते हो रात को, What do you sleep? What do you think when you go off to sleep? अरे तुम बुरा क्यों सोचते हो, तुम्हारी सोच को भी प्रभु सुन लेता है। मत्ती Why 9:4 do you think evil? The Lord can hear your thinking in Matthew 9:4. हाँ पढ़िएगा। Read Matthew 9:4. मत्ती 9:4, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? अरे तुम क्यों करते हो, But Jesus, knowing their thoughts, said, why do you think evil in your hearts? Why हाँ, do you think evil? अपने लिए तो परमेश्वर के सामने दया मांगते हो और दूसरे के लिए दंड सोचते हो। For yourself, you ask for mercy, and for the other, you ask for punishment. हाँ क्योंकि प्रभु इसे तो सिखाई दे बस, Lord, teach him a lesson. तुम्हारे पास दया नहीं है दूसरे के लिए, You don't have mercy for another. बस अपने लिए प्रभु मुझ पे दया कर, ये मेरे परिवार को, Lord, have mercy on me. और दूसरे को And for the other, प्रभु आगे नीचे कहता है मैं दया से खुश होता हूँ, दंड से नहीं। below that, the Lord says, I am pleased with mercy. हाँ हमारे मन में अपने लिए दया और दूसरे के लिए दंड, In my heart, mercy for myself and punishment for another. हाँ ये हमारे सिंगार जो मन में, इसमें हमारे इसमें बहुत दोष है, इस बात के लिए सोच में दोष है। There is a great problem in our heart. हाँ देखिए जब हम दूसरे के लिए दोष के बारे में सोचते हैं तो वो दुश्मनी का रूप ले लेता है, फिर आगे दोष। When we think of punishment for another, it takes the form of enmity. जब विचार की सोच आती है फिर वो विचार में ले जाती है। When the thought of adultery comes, it takes you into adultery. हाँ वही सोच गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। That same thought conceiving in us gives rise to sin. हाँ अपनी सोच को भी निगरानी में रखो भाई जी, So keep your thinking in control. किसी के विरोध में तो कुछ नहीं सोच रहे, नहीं तो आप खतरे में आ जाओगे। Am I thinking against somebody? Otherwise you will be in danger. मत्ती 9:35 पढ़िएगा जरा। Read Matthew 9:35. यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। When कमजोरियों Jesus को, went about
Then Jesus went about all cities and villages, teaching the synagogue, preaching the gospel, healing every sickness and every disease among the people. हाँ, वो कह रहा कमजोरियों को दूर करता रहा. Yeah, in Hindi it says he removed every weak. He kept on healing their weaknesses. हाँ, क्या आप अपनी कमजोरी जानते हो? Do you know your weakness? हाँ, क्या आप उस कमजोरी को प्रभु के सामने लेकर आए हो? Have you brought your weakness in front of the Lord? मेरी सोच बड़ी गंदी है प्रभु. Lord, my thinking is very dirty. प्रभु हमेशा नकारात्मक सोच है मेरे पास. My thinking is always negative thinking. प्रभु कह रहा है कि अपनी सोच पर सोचो और इसे क्रूस पर ठोक दो. The Lord says, think about your thinking and crucify it. हाँ, प्रभु अपने विरोध को ठोक दो. Crucify your opposition. हाँ, देखिए एक और पद पढ़ लीजिए, लूका 9:23. Read another verse, Luke 9:23. हाँ, जल्दी पढ़ हाँ, दिए. लूका 9:23. हाँ जी भाई. When Jesus came into the ruler's house and saw the flute players and noisy crowd wailing, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले. हाँ, अपना क्रूस उठाना, रोज उठाना. You have to carry your own cross daily. कभी इतना थक जाते होगे कि भाई नहीं अब नहीं कुछ कर सकता, मगर करना है. Sometimes you get so tired you can't do anything more, but you have to do it. हाँ, करना है, कुछ भी करना है. You have to do it. हाँ, रोज क्रूस उठानी है, रोज का है का. Every day you have to carry your cross every day. हर दिन की एक सेवा है आपके पास रखी. You have a ministry every day. और ये आखिरी दिन तक आपका होना है. And this has to be with you till the last day. नहीं तो आप सही जगह नहीं खड़े, खतरे की जगह खड़े. Otherwise, you're not standing in the right place, you're standing in the place of danger. हाँ, एक बहन थी, वास्तविक है, सच्ची कहानी है. नहीं, This is a true story. There was a sister. कैंसर से पीड़ित थी. डॉक्टर ने कहा भाई अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ दिन की मेहमान है, इन्हें परिवार के साथ घर ले जाकर उनके साथ रखो, आखिरी दिन वो अपने परिवार के साथ बिता सके. She was dying of cancer. The doctor said nothing more can be done. Please take her home. Let her be with the family. हाँ, जो कुछ बचे दिन है वो अपने परिवार के साथ बिताते. Let us spend the last few days with the family. उस बहन ने क्या कहा? What did the sister say? मैं इस कैंसर के साथ जीऊंगी और इस हॉस्पिटल में जीऊंगी. I will live with this cancer and I will live in this hospital. मुझे मालूम है मेरे दिन बहुत थोड़े से बचे. I know I only have a few days. मैं अपने परिवार के साथ सारा जीवन रह चुकी हूँ और स्वर्ग में फिर रह लूंगी. I have lived with my family all my life and I will live with them again in heaven. ये कैंसर से मरते हुए लोग, ये पाप से मरते हुए लोग, इनको के लिए कौन इन्हें बचाने का सुसमाचार? Who will preach the gospel to these patients who are dying of cancer or dying in their sins? ये थोड़े से दिन बचे, मैं अपने परिवार के साथ बिताऊं. I have only a few days. Will I spend it with my family? हाँ, इनके लिए बिताऊंगी मैं. I will live my life for these people. जिस कैंसर के साथ और इस हॉस्पिटल के साथ आखिरी सांस तक जीना है, ताकि मैं इन्हें प्रभु के बारे में बता सकूं. I have to live with this cancer and live with these people till my last breath, so I will tell them about Christ. जो अपनी क्रूस उठाकर नहीं चलता, वो मेरे साथ नहीं चल सकता. The one who doesn't carry his cross and follow me doesn't follow me at all. हम सब भागते अपने परिवार के साथ भाई, जब अगर महीना भर बचा तो वही काट. If we all run to be with our family, last month left, let's spend it with the family. इस सोच में था मेरे आखिरी दिनों में मेरा प्रभु ही पहले रहे. But in her thinking, my Lord is first. हाँ, मैं तो अपने परिवार से मिल लूंगी स्वर्ग में, कोई बात. I'll meet my family in heaven. देखिए, अगर आप प्रभु की भेड़ हैं तो आपने प्रभु की आवाज सुनी होगी. If you are the sheep of Christ, you have heard the voice of Christ. अगर दोगले हैं तो फिर आप टाल देंगे. If you are double-minded, you will turn away from this voice. वो पूरी सुबह से जब सूरज निकलने से पहले हमें अपनी क्रूस उठानी पड़ती है.
Right from the morning before the coming up of the sun, we have to carry our cross. मैं दूध लेने जाऊंगा, मगर मेरा एक जरूर है मेरे साथ, कि मेरे साथ सुसमाचार जाएगा। I will go to take the milk, but it is with me that I will carry the gospel with me. परिणाम होगा देखा जाएगा, वो आज नहीं तो कल तो होगा। Consequence will be there today or tomorrow, someday. अगर आपने कीमत चुकाने की सोच ली तो आप कर जाओ। If you have prepared your heart to pay the price, you will do it. आपके लिए आपके प्रभु से परिवार पहले है। Is your family first before Christ? आप सुसमाचार को प्यार करते हैं? Do you love the gospel? आप परमेश्वर के अनुग्रह का अपमान करते हैं? You dishonor the grace of God. प्रभु की भेड़ें उसकी आवाज को सुन रही हैं। The voice of the Lord, hear his voice. The sheep of the Lord hear his voice. कुछ लोग टाल रहे हैं। Some people are turning away. भाई आपने वचन बहुत बढ़िया दिया। Oh, brother, you gave a wonderful message today. कुछ नहीं होने वाला इससे, कुछ नहीं होने वाला। Nothing will happen through this. ऐसे सैकड़ों कहते हैं सुबह शाम तक। We say many things like this from morning to evening. अगर आपके जीवन में इस वचन से परिवर्तन नहीं आया, If change doesn't come in your life through this message, तो आप परमेश्वर के वचन का अनुग्रह का अपमान करते हैं। then you are dishonoring the grace of God. आप में कीमत चुकाने की हिम्मत नहीं है। You do not have the courage to pay the price. बाइबल में लिखा है डरपोकों के लिए परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है। नॉट The Bible says, for there is no place in the kingdom of God for the fearful. क्या अभी इतने ही डर ने सुसमाचार देना बंद कर दिया? डरपोक का भाग कहाँ होगा? अरे बोलो कहाँ होगा? बाइबल पढ़िए तो। डरपोकों का भाग उस जगह होगा। प्रकाशित बातें पढ़ लो। Can read it. प्रियो, अगर प्रभु की भेड़ है तो आपने आवाज सुनी होगी। If you are the sheep of Christ, you would have heard his voice. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray.